बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all students for the new academic session 2022-2021. This is class 5 and it's the period of English grammar. First of all, I want to tell you about the book which you have read in your previous class 4th. As you can see here, your book that its name is Primary School English Grammar and Composition. It's written by Ryan Martin. This book you have read in your previous class. Now come to your copy. This is your copy, English Language Grammar. First of all, you will fill the cover page of your copy. Then you will fill the exercise book page with the basic information with the help of your parents. Then you will make the index by date wise and date wise according to your solution. Now come to the title pages. Title pages you have to make two title pages. First one is you have to make the title page of first semester midterm has been started. Then you will make another title page, revision of tenses, week number 1. Your title pages should be very colorful and very impressive. Now let's move to our topic. Today is the first period of English grammar. So first of all, as you can see here, that first of all I have written the two definition of grammar and tense. So first of all you should know about the grammar and tense. What is a grammar? Grammar क्या है? Grammar किसे कहते हैं? To learn about rules and regulation of any language is called grammar. किसी भी लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में जानना, उन्हें समझना, उन्हें सीखना ग्रामर कहलाता है। उर्दू के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में या इंग्लिश के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट, टेंस. व्हाट इज आर टेंस? टेंस क्या है? टेंस किसे कहते हैं? सो द टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन. किसी काम को या फेल के वक्त को जाहिर करता है, और एन इवेंट या किसी भी इवेंट को जाहिर करता है, किसी भी इंसिडेंट को जाहिर करता है, दैट हैज़ एंड हाउ फार दैट एक्शन वॉज कम्प्लीटेड. कि वो एक्शन जो है वो कितनी देर में मुकम्मल हुआ है. मतलब टेंस को हम उर्दू में कहते हैं ज़माना. ज़माना मतलब कि अगर हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं, किसी भी फेल को शुरू कर रहे हैं, तो वो हमारा फेल या वो काम जो है वो हमारा कौन से वक्त में मुकम्मल हुआ है उसके बारे में टेंस बताता है. I have written two examples. She is a beautiful girl and other is she is playing. Number one tense, in this tense she is a beautiful girl, इसमें action verb नहीं है. Is a helper. Yes, this is simple tense. And the other one is she is playing. The action is happening in this tense. What? Playing. Playing is a action verb. Now let's move another topic, that kinds of tense. Tense की किस्में, ज़माने की किस्में. ज़माने की किस्में कितनी हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स ज़मानाए हाल. ज़मानाए हाल मतलब मौजूदा का ज़माना. पास्ट टेंस मीन्स ज़मानाए माजी, मीन्स गुजरा हुआ ज़माना. फ्यूचर टेंस मीन्स ज़मानाए मुस्तकबिल, मीन्स आने वाला ज़माना. इसको अगर देखा जाए इजली वे में, तो प्रेजेंट जुमलों के आखिर में है, हैं या
हूँ वगैरह आते हैं। और अगर पास्ट टेंस के सेंटेंस में अगर देखा जाए तो पास्ट टेंस के लास्ट में था, थी, थे वगैरह आते हैं। और फ्यूचर टेंस के अगर टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखा जाए तो इन जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आते हैं। नाउ वी विल टुवर्ड्स द चार्ट ऑफ टेंस। Every kind of tense has also 4 kinds. That present has 4 kinds, past has 4 kinds, and the future has 4 kinds. First one is present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Past indefinite, past continuous, past perfect continuous. Then future indefinite, future continuous, future perfect continuous. You have learned there are 12 tenses in English grammar. There are total 12 tenses in English grammar which you have learned 9 tenses in your previous class. Now I have written 3 tenses here. I go to school. मैं स्कूल जाती हूँ. First one I have said about the present. The present, what present? Which things are happening in your present time? वो चीज़ें जो आपके present time में हो रही हैं, सरंजाम दी जा रही होती हैं, वो present का tense कहलाता है. जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ. नाउ सेकेंड वन इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस विच थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैव हैपेंड इन योर पास्ट टाइम. वो चीज़ें जो आपके पास्ट टाइम में हो चुकी होती हैं वो आपकी पास्ट टेंस कहलाता है. जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई थी. Now the third one is future tense. What is future tense? Future tense which things will happen in your future time. वो चीज़ें जो आपके फ्यूचर में रोनुमा होंगी, वो काम जो आप फ्यूचर में करेंगे उसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है. जैसे I will go to school, मैं स्कूल जाऊंगी. I think you have got 3 tenses. Now we will come towards the kinds of tenses. Now let's move forward that I have written the structures of 9 tenses. First of all, you have to do the chart, make the chart of your first day, 1st July, according to your solution. This chart you have to make in your copy in a horizontal way. Horizontal way means like this. You have to make this chart in your copy like this. Now come to this work that I have written the structures of all tenses. That प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमलों की पहचान जो है वो मैं आपके जो सॉल्यूशन जो दिया गया है 2 जुलाई का, उसके मुताबिक जो है मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमलों की पहचान क्या है. इन जुमलों के आखिर में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं. वो जुमले जो ता है, ती है, ते हैं पर ख़त्म होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस कहलाते हैं. आ जाइए इसके स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला. वर्ब जो काम हो रहा होता है उसे वर्ब कहा जाता है. और ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम हो रहा होता है. दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फॉर्म से एस और यस हटा देते हैं जहां पर हम डज यूज करते हैं. सो कम टू द सॉल्यूशन. वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. दिस इज अ पॉजिटिव टेंस. वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल. क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल. नाउ कम टू द टेंस ऑफ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम हो रहा होता है. दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसके सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं. सिर्फ सेकंड फॉर्म पॉजिटिव टेंस में यूज होती है. इसका टेंस जो आपके सॉल्यूशन में गिवन है वो मैं रीड कर रही हूँ.
वो स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल. क्या वो स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनेट. नाउ कम टू द फ्यूचर इंडेफिनेट. फ्यूचर इंडेफिनेट इन जुमलों की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जुमलों के आखिर में क्या आता है, गा गी गे. जुमलों के आखिर में गा गी गे आता है. पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, विल और शैल. नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. नाउ कम टू द टेंस ऑफ फ्यूचर. वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल. क्या वो स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल. नाउ यू हैव गॉट ऑल indefinite tenses. Now come to the next lecture, next solution of your date number 5. Your date number 5. Now come to the present tenses. Present tenses इन जुमलों की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन जुमलों के आखिर में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं. आ जाइए इसके स्ट्रक्चर पे. पॉजिटिव स्ट्रक्चर. पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. नाउ कम टू द सेंटेंसेस ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूस. दैट वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल. क्या वो स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल. नाउ नेक्स्ट is past continuous. Past continuous structure is subject plus helping verb was, were plus first form of the verb plus ing plus object. This is positive structure. Negative structure is subject plus helping verb was, were plus not plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative structure is helping verb was, were plus subject plus first form of the verb plus ing plus object plus question mark. Now come to the sentences on present past continuous. वो स्कूल जा रहा था, he was going to school. वो स्कूल नहीं जा रहा था, he was not going to school. क्या वो स्कूल जा रहा था, was he going to school. Now come to the next tense future continuous. Positive structure is subject plus helping verb will be, shall be plus first form of the verb plus ing plus object. Negative structure is subject plus helping verb will not be, shall not be plus first form of the verb plus object. नेगेटिव में will और be के दरमियान में नोट लग जाएगा, इसी तरीके से shall और be के दरमियान में नोट लग जाएगा. अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर. इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब will, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस be प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और बी के दरमियान में पहले सब्जेक्ट लगेगा. विल सब्जेक्ट बी, शैल सब्जेक्ट बी. नाउ कम टू द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस. वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल. क्या वो स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल. Now I think you have got. Now come to the next lecture of your Monday, 6th July. On 6th July you have the tenses of perfect. सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिफिकेशन पे आ जाइए. प्रेजेंट परफेक्ट के जुमलों की पहचान क्या है. इन जुमलों के आखिर में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है. ठीक है. अब आ जाइए इसके स्ट्रक्चर पे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव और verb third form of the verb plus object. This is positive structure. Now negative is subject plus helping verb has, have plus not plus third form of the verb plus object. Interrogative structure is helping verb has or have plus subject plus third form of the verb plus object plus question mark. Now come to the sentences of present perfect. वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है.
ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया है। ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया है या क्या वो स्कूल जा चुका है। हैज़ ही गॉन टू स्कूल। नाउ कम टू नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इज चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। नाउ कम टू द पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ कम टू द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट, वो स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल। This helping verb is had, not has or have. Has or have, this helping verb, its helping verb is had. He had gone to school, वो स्कूल जा चुका था। He had gone to school, वो स्कूल नहीं गया था। He had not gone to school, क्या वो स्कूल गया था। Had he gone to school. Have you got? Now move towards future perfect. The identification of future perfect is चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इट्स written in your solution. Now positive structure is subject plus helping verb will have, shall have plus third form of the verb plus object. This is positive structure. Come to the negative structure, subject plus helping verb will or shall plus not plus have plus third form of the verb plus object. Now interrogative structure is helping verb will or shall plus subject plus have plus third form of the verb plus object plus question mark. नेगेटिव में will और have के दरमियान में नोट लग जाएगा, will not have, shall not have. इंट्रोगेटिव में will और have के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, will subject have, shall subject have. Now I hope you have got this sentence. Come to the tense of future. वो स्कूल जा चुका होगा। He will have gone to school, वो स्कूल नहीं गया होगा। He will not have gone to school, क्या वो स्कूल गया होगा या क्या वो स्कूल जा चुका होगा। Will he have gone to school. I hope you have got all these tenses. Now I will make one tense. I'm writing one sentence, then we will make 9 tense of this one from this one tense. that हम खेलते हैं this is tense present indefinite, this tense is present indefinite. हम खेलते हैं। इस एक टेंस से आपने 9 टेंस बनाने हैं। जो वर्क मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ, इसी तरीके से आप लोगों ने एक टेंस जो मैं आपको दूंगी वो होमवर्क में करके लाना है, करना है रफ कॉपी में, ठीक है। जैसे पहला टेंस है हम खेलते हैं वी प्ले, हम खेलते हैं, दिस इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट। नाउ सेकंड इज हम खेल रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस एंड दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। वी आर प्लेइंग। नाउ द थर्ड वन इज हम खेल चुके हैं। इन जुमलों के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं। इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं। और इन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं, ठीक है। नाउ वी हैव प्लेड, दिस इज प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ नंबर 4 इज हम खेलते थे, वी प्लेड, हम खेलते थे। पास्ट टेंस पर आ जाइए, पास्ट इंडेफिनेट। सबसे पहले हम खेलते थे, वी प्लेड। नंबर 5 हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग।
Now the sixth is हम खेल चुके थे. We had played. I have made 6 tenses from 1 tense. Now we will move towards the future tense. हम खेलेंगे. दिस इज फ्यूचर इंडेफिनेट. हम खेलेंगे. सब्जेक्ट पहले वी, हेल्पिंग वर्ब, वी विल प्ले. नाउ एट वन इज हम खेल रहे होंगे. फ्यूचर कंटिन्यूस. वी विल बी प्लेइंग. हम खेल चुके होंगे. वी विल हैव प्लेड. आई होप यू हैव गोट एवरीथिंग. अच्छा, इसका दूसरा टेंस भी हो सकता है हम खेलते थे या हम खेले या हमने खेला, ये भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, आई होप यू हैव गोट एवरीथिंग. नाउ आई एम रिपीटिंग दीज सेंटेंसेस अगेन. डेट हम खेलते हैं. जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम खेल रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस. रहा है, रही है, रहे हैं. वी आर प्लेइंग. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. हम खेल चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट. चुका है, चुकी है, चुके हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम खेलते थे, हम खेले. पास्ट इंडेफिनेट. वी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम खेल रहे थे. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. हम खेल चुके थे. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम खेलेंगे. फ्यूचर इंडेफिनेट. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम खेल रहे होंगे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. हम खेल चुके होंगे. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग. नाउ आई एम गिविंग यू द डायरी विच यू हैव नोट डाउन इन योर डायरी. फर्स्ट यू हैव टू फिल द पेज of your cover page of your diary. Then you will note down your diary. Here I am giving you one tense. From one tense you have to make 9 tense like this. वो किताब पढ़ती है. दिस टेंस इज फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनेट. आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस. विद द हेल्प ऑफ दिस वन टेंस यू हैव टू मेक 9 टेंसेस. जस्ट लाइक वो किताब पढ़ती है. प्रेजेंट इंडेफिनेट. वो किताब पढ़ रही है. प्रेजेंट कंटिन्यूस. वो किताब पढ़ चुकी है. प्रेजेंट परफेक्ट. उसने किताब पढ़ी या वो किताब पढ़ती थी. पास्ट इंडेफिनेट. वो किताब पढ़ रही थी. पास्ट कंटिन्यूस. वो किताब पढ़ चुकी थी. पास्ट परफेक्ट. वो किताब पढ़ेगी. फ्यूचर इंडेफिनेट. वो किताब पढ़ रही होगी. फ्यूचर कंटिन्यूस. वो किताब पढ़ चुकी होगी. फ्यूचर परफेक्ट. इसीलिए आपने इस वन टेंस की मदद से 9 टेंस बनाने हैं आपने अपनी रफ कॉपी में. सो वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द न्यू टॉपिक नाउन. सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.